Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the nomenclature, classification, and the physical property of the alkynes. So, what are hydrocarbons? Before proceeding for the detailed study of the alkynes, we first of all see about the hydrocarbons because the alkynes are also the hydrocarbons. So, what are hydrocarbons? The compounds which contain only the carbon and the hydrogen are called as the hydrocarbon because the name hydrocarbon itself reflects these two terms, that is the hydro means hydrogen, carbon means carbon. ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट जो आपके ये हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और दे में भी द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contains single bond in between the C and C atom are called as the saturated hydrocarbons. For example, alkanes. In alkanes, you can see the state chain is always shown in the form of the zigzag way because the state chain never tells about the presence of the carbon atom कि how many carbon atom are present in the state chain। मान लीजिए देखो आपके सामने मैंने state chain ड्रा कर दी तो आप बता ही नहीं सकते कि इसमें कितने आपके कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। इसमें दो ही एंड हुए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड, इंटरमीडिएट बीच में कितने कार्बन है पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको जिगजैग फॉर्म में शो करते हैं कार्बन एटम की चेन को। तो कार्बन एटम की चेन के जितने भी पॉइंट और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं दीज टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम। जैसे जो एग्जांपल हमने लिया उसके अंदर बोलो हमने कितनी डॉट लगाई, देखो 4 डॉट मैंने रेड लगा के आपको दिखाई। तो देखो 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड एंड द फोर्थ, तो टोटल कार्बन कितने हो गए 4। तो इसलिए जो कार्बन एटम की जो चेन है उसको हम जिगजैग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ए का मतलब द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द सी एंड सी एटम। So these are the saturated hydrocarbons. Next are the unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons which contains the multiple bond in between the C and C atom are called as the unsaturated hydrocarbons. The multiple bond may be in the form of double bond or in the form of the triple bond. So the example of the unsaturated hydrocarbons are alkenes, alkynes. In alkene, there will be the double bond in the principal chain. In the principal chain जो होगी आपके कार्बन एटम्स की, उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर डबल बॉन्ड दिखे तो वो आपकी स्पीसीज कहलाएंगी एल्कीन्स। सिमिलरली आपके जो एल्कीन है इसके अंदर जो एल्क है ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ई किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द सी एंड सी एटम। Alkynes. In alkyne, there will be the triple bond in between the C and C atom of the principal chain. जो आपकी principal chain है उसके अंदर C और जो C atom है उनके बीच में आपको क्या दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, तो वो आपके कहलाएंगे एल्काइन। एल्काइन में भी जो ALK एल्क है it tells about the number of carbon atom and YNE tells about the presence of triple bond between the C and C atom. These both alkene and alkynes are the unsaturated hydrocarbons. The alkenes are generally called as the olefins. इन्हें आप olefins कहते हैं due to their oil forming tendency, because the lower member of the alkenes have the tendency to form the oily liquids on reaction with the chlorine gas. While alkynes are called as the acetylene, because the lowest member, जो first member है आपका alkyne series का, वो कौन है, acetylene. So these are called as the acetylenes. जो आपकी alkenes होती हैं, these are more reactive than alkanes. You already know the reactivity of any of the compound is due to the presence of the reactive site. The reactive site may be in the form of the double bond or the triple bond or some other functional groups. But in case of alkane, there is no reactive site. जो आपके alkanes होते हैं आप ऊपर डायग्राम में देख पाएंगे, जहाँ पे आपने zigzag chain दिखा रखी है उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, there is only single bond. There is no double bond, there is no triple bond, there is no functional group. So alkanes are the least reactive species. While so the alkenes are more reactive than alkanes because alkenes have the reactive site, that is the double bond. क्योंकि alkenes के अंदर double bond होता है, वो reactive site होती है, उसके ऊपर उसके across आपकी reaction हो सकती है, easily हो सकती है. So which are more reactive? The more reactive are alkenes due to the presence of a reactive site. Alkynes are even more reactive than alkanes. Alkynes भी alkanes से ज़्यादा reactive होते हैं because in alkynes also there is the reactive site in the form of the triple bond. फिर हम देखेंगे नाउ व्हाट आर एल्काइंस। व्हाट आर एल्काइंस? एल्काइन की डेफिनेशन क्या है? एल्काइंस भी दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज द एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम, YN मींस ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपको क्या दिखाई दे, देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द C and C atom and the general formula is CnH2n-2 are called as the alkynes. आप उन्हें alkynes कहते हैं।
तो जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हम क्रिएट कैसे करते हैं, वो तभी क्रिएट हो सकता है कि आपके पास कोई एल्केन हो। जैसे हमने ये एल्केन आपके सामने ड्रा कर दिया, ये जिगजैग चेन है आपके सामने, 4 कार्बन एटम की चेन है, इस ब्यूटेन है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n प्लस में 2। अगर इसमें हम क्या करें, जो 2 एडजेसेंट कार्बन है उनके ऊपर से H हटा दें तो उन कार्बन एटम की वैलेंसी कम होगी। पूरी करने के लिए हम उनके बीच में देखो डबल बॉन्ड हमने क्रिएट कर दिया, जो रेड कलर से हमने दिखाया। तो हमने क्या किया था, जो ये 2 आपके हाइड्रोजन को हमने क्या किया बोलो, रिमूव, और वहां पे क्या आ गया बोलो, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे CH2 था ना, तो यहाँ पे क्या रह गया, CH। इसके एडजेसेंट कार्बन देखो CH3 था, हमने क्या हटा दिया, एक H बोलो, क्या हो गया, CH2। तो मीन्स आपने जो नेबरिंग कार्बन एटम है उनके ऊपर से क्या रिमूव किया आपने, एक एक H, और उन्होंने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वहां पे क्या क्रिएट कर दिया, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से ये क्या बन गई, एल्कीन। अगर हम एल्काइन बनाना चाहते हैं तो 1 H और रिमूव कर दें, लेकिन जनरल फार्मूला भी आप साथ के साथ देख लें। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n प्लस में 2। देखो CnH2n प्लस में 2। अब हमने इसमें देखो क्या किया, हमने 2 हाइड्रोजन आपके लेस कर दिए, तो देखो फार्मूला क्या बन गया, CnH2n प्लस 2 माइनस में 2। तो देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, CnH2n। तो ये एल्कीन का फार्मूला हो गया। अब हमें एल्काइन बनाने हैं, तो जो आपके कार्बन जिनसे पहले आपने रिमूव किए थे, आपके बोलो क्या रिमूव किए थे, H एटम, उन्हीं के ऊपर से एक एक H और रिमूव कर देते हैं हम। देखो हमने फिर रिमूव कर दिया, तो वहां पे कैसा बॉन्ड आ गया बोलो, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखो ये जो CS था बोलो अब क्या बन गया, ये देखो सिर्फ C रह गया। देखो ये जो CH2 था, यहाँ पे एक H हटाया, ये CH रह गया। दोनों के एक एक बॉन्ड की वैलेंसी कम हो जाती, एक एक बॉन्ड की कमी हो जाती, तो क्या बन गया वहां पे, एक और ट्रिपल बॉन्ड, एक और अपने पाई बॉन्ड वहां पे लगा दिया, तो इसलिए वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो आपके 2 H और हटाई से जनरल फार्मूला बताओ क्या बना, CnH2n माइनस में 2। बोलो क्या हो गया, CnH2n माइनस में 2, क्योंकि 2 H और आपने रिमूव कर दिए। तो ये था आपका वे के किस तरह से हम समझें कि ये फार्मूला CnH2n कैसे बना। तो इस टाइप से ये CnH2n माइनस में 2 जो फार्मूला है आपके एल्काइन का, तो इस टाइप से ये डिराइव होता है, इस टाइप से आप इसको समझते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी एल्केन हमने स्टार्ट किया, एल्केन के अंदर से आपने एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 था, उसमें से आपने 2H क्या किए, आपने कम कर दिए, देखो माइनस में 2H आपने किया। ऐसा करते ही आपके एल्कीन बन गए, उनका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n। उसके अंदर से फिर से आपने 2H आपके रिमूव कर दिए फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, और उसके बाद फिर से एक और बॉन्ड और बन गया, ट्रिपल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया, और जनरल फार्मूला हो गया CnH2n माइनस में 2। अब हम देखते हैं लोएस्ट मेंबर कौन हो सकता है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या लाना है बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। ये जो डेफिनेशन थी वहां पे देखो गलती से डबल लिखा गया था, क्या होगा बोलो यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन और कार्बन के बीच बोलो हमें क्या लाना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लेके आना चाहते हैं तो वो कब पॉसिबल है, कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही, मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 2 हुई, तो फिर हमारा कंपाउंड क्या बन गया, इथाइन। बोलो क्या बन गया ये आपका, इथाइन। देखो C और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद इनकी वैलेंसी को देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, बची वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की हमें H लगाने पड़े। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन गई, इथाइन की स्ट्रक्चर आपकी बन गई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब प्रोप के अंदर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लेके और उस 3 कार्बन के बीच में बोलो हम क्या करेंगे, किसी भी एक कार्बन के बीच में हम क्या लगा देंगे बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड देखो लगा दिया। उसके बाद बची वैलेंसी किससे पूरी करें, H से। देखो जो एंड कार्बन है आपके राइट हैंड साइड में, वहां पे उसका एक ही बॉन्ड है, तो आप 3H लगा देंगे। मिड वाले की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है उसके 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर क्या लगा दो, एक H। देखो इसलिए हमने एक H लगाया। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करते चले जाते हैं। तो अब आप ये देखें, जो अभी हमने ये बनाई ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे बोलो कौन कौन सी आपको बताई, एक तो इथाइन और एक ये प्रोपाइन। तो इथाइन और प्रोपाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो किस यूनिट का है, CH2 यूनिट से। इनके फार्मूले को देखें, इनके मोलिकुलर फार्मूले को देखें। मोलिकुलर फार्मूला क्या है इथाइन का, C2H2। प्रोपाइन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C3H4। Now what's the difference between these two? They differ from each other by CH2 unit. They differ from each other by the CH2 unit. इनमें CH2 का ही डिफरेंस है। एक कार्बन देखो इथाइन के कंपैरिजन में प्रोपाइन में एक तो कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन 2 ज्यादा है, इसलिए CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। तो ये जो ऐसी सीरीज बन गई जिसमें जो आपके नेबरिंग मेंबर्स होते हैं, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 यूनिट एंड दे हैव द जनरल फार्मूला, they have the similar chemical property but different physical property are called as the, ये क्या कैसी सीरीज कहलाएगी, ऐसे बनती चली जाएगी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके मेंबर होंगे, जो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे, जो नेबरिंग मेंबर्स होंगे, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 यूनिट। मींस डिफर बाय हाउ हाउ मच मास, 14 AMU के मास से ये आपस में डिफर करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। जो एल्काइंस है आपकी, अगर हम इनको देखें 2 to 4 कार्बन एटम के, ये तो क्या होते हैं, कलरलेस गैसेस होती हैं। 5 to 12 कार्बन एटम तक हम देखें तो दीज आर लिक्विड, और ग्रेटर देन 12 कार्बन एटम देखें तो दे आर सॉलिड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फिर वही बेसिक बात कि आपके जब भी किसी भी कंपाउंड की आप आइपैक्नेमिक लिखते हैं तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पार्ट्स ही हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ ओनली 5 पार्ट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जब आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए तो स्ट्रक्चर को देख के जब कभी भी आपको नेम लिखने के लिए कहा जाए कि राइट डाउन द आईपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, जिसकी स्ट्रक्चर आपको गिवन होगी, तो आप सबसे पहले आपका काम होता है उसमें प्रिंसिपल चेन को ढूंढना। उस प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं कार्बन एटम। तो प्रिंसिपल चेन क्या होती है, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हैविंग द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल चेन। उस प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं कार्बन एटम, जितने भी है कार्बन एटम, वो बताता है वर्ड रूट के बारे में। if there are 3 carbon atom, so word root will be prop। अगर if there are the 4 carbon atom in the principal chain तो word root हो जाएगा आपका ब्यूट एंड सो ऑन। तो word root हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। उसके बाद जो प्रिंसिपल चेन है उसके जो कार्बन एटम है प्रिंसिपल चेन के, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे है बॉन्ड। मिस प्रिंसिपल चेन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है वो आपके, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो आपकी अनसैचुरेशन कहलाती है। तो प्राइमरी सफिक्स जो पॉइंट नंबर 2 है, इट टेल्स अबाउट द whether the principal chain is saturated or the unsaturated, means there is the single bond or the double or the triple bond in the principal chain। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ANE आप लगा देते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE आप यूज करते हैं आफ्टर द वर्ड रूट। नेक्स्ट इसके बाद आप देखते हैं जो आपकी प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं। If there is any primary function, if there is a group that act as the primary functional group, so उसको क्या कहते हैं आप, सेकेंडरी सफिक्स। तो वो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। उसके बाद इफ द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक और नॉट, इट टेल्स अबाउट, कौन बताएगा इसके बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स वेदर द प्रिंसिपल चेन इज द साइक्लिक और द एसाइक्लिक। इफ द प्रिंसिपल चेन इज एसाइक्लिक आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, इफ द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक तो आप साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे बिफोर द वर्ड रूट। तो ये पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। इट टेल्स अबाउट द ऑल द it tells about all the substituents or the secondary functional group which are attached on the principal chain। principal chain के ऊपर कितने substituent attach हैं, कोई secondary functional group attach है, तो उसकी full information कौन देता है, आपका secondary prefix। तो ये इसके different parts हो जाते हैं। तो ये point number 5 आ गया, 5th part बन जाता है आपके IPAC नेमिंग के दौरान। अब हम एग्जाम्पल लें, देखो इस एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल चेन को आप सर्च आउट करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे बन गई प्रिंसिपल चेन, और जो प्रिंसिपल चेन इसमें टोटल कार्बन काउंट करें, टोटल तो 3 कार्बन, अब नंबरिंग करें। नंबरिंग के लिए आप लोवेस्ट सम रूल यूज करते हैं कि ड्यूरिंग द नंबरिंग शुड बी मस्ट बी डन इन सच ए वे दैट द सम ऑफ लोकेंट शुड बी मिनिमम। तो सम ऑफ लोकेंट है वो मिनिमम रहना चाहिए। यहाँ पे जो सम ऑफ लोकेंट किसका, द सम ऑफ लोकेंट ऑफ द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड और द सब्स्टिट्यूएंट्स और द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जितने भी आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जो प्रिंसिपल चेन के ऊपर अटैच हैं, उन सभी के लोकेंट का सम आपका मिनिमम होना चाहिए। तो आप उस एंड से नंबरिंग करेंगे। जो आपकी प्रिंसिपल चेन है उसके सिर्फ 2 ही तो एंड होंगे, आपका या तो लेफ्ट साइड से एंड स्टार्ट होगा या राइट साइड से एंड स्टार्ट होगा। अगर अब जैसे मैंने नंबरिंग की है तो लेफ्ट साइड से की है, देखो 1 2 3। अगर यहाँ से हम सम ऑफ लोकेंट देखें तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन कार्बन एटम नंबर 1 एंड 2। तो लोएस्ट नंबर दिया जाएगा तो ओनली 1, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। तो इसलिए हमने अगर नंबरिंग की आपके लेफ्ट टू राइट तो सम ऑफ लोकेंट इज 1। अगर हम करते, देखो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, तो 1 आ गया, सम ऑफ लोकेंट इज 1। अगर हम करें नंबरिंग, बोलो इसके अपोजिट साइड से, देखो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ लोकेंट इज 1। अगर हम नंबरिंग अपोजिट साइड से देखो ऐसे करते हैं, और फिर हम देखना चाहिए यहाँ पे सम ऑफ लोकेंट, कि सम ऑफ लोकेंट अब कितना आता है। नंबरिंग कर देते हैं अपोजिट साइड से, देखो 1 2 and 3। नाउ द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 3 2 and 3, सो द सम ऑफ लोकेंट क्या कहलाएगा आपका, इज इक्वल टू 2। बोलो कितना आ गया आपका 2। तो जो कहाँ पे मिनिमम है, देखो 1 है आपका मिनिमम, 2 तो इसलिए ये इसको आप कैंसिल कर देंगे। तो नंबरिंग करेंगे आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से, तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग कहलाएगी। अब इसका नेम लिखते हैं। नेम कैसे लिखें, आपको इसमें क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन आर हाउ मेनी,
here are the three, so use the word root prop वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आप लिखेंगे, इसकी पोजीशन 1 और 2 के बीच 1 है तो 1 लिख देंगे। तो नेम क्या हो गया इसका, प्रोप 1 आइन। बोलो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोप 1 आइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे उसी टाइप से प्रिंसिपल चेन को आप सर्च आउट करें। इस टाइप से सर्च आउट करेंगे कि जो प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके मल्टीपल बॉन्ड आने जरूरी है। देखो इस टाइप से आप सर्च आउट करेंगे। देखो ये आपने प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज द प्रिंसिपल चेन जिसमें 4 कार्बन एटम है। अब इसके अंदर आपने यही क्यों चूज किया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का आना जरूरी था। प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम के बीच में ही मल्टीपल बॉन्ड रहना चाहिए। अब नंबरिंग किधर से करें, मान लीजिए मैं करता हूं लेफ्ट टू राइट, किधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो ऐसे 1 2 ये 3 एंड द 4। अब यहाँ पे आप सम ऑफ लोकेंट देखिए, बोलो क्या आएगा इधर से सम ऑफ लोकेंट। अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ लोकेंट आएगा यहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे 1 और 2 के बीच में है तो आपने 1 लिखा, प्लस नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है तो देखो हमने 3 लिखा, प्लस जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका CH3 दैट इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 3 तो आपने 3 लिखा, तो आंसर इज 7। अब हम करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 and the 4. Now the triple bond is present between 1 and 2 तो 1 लिख दिया हमने, प्लस नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 3 and 4 तो हमने देखो 3 लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन CH3 पोजीशन इज एट पोजीशन नंबर 2। देखो ये 2 के ऊपर है, देखो यहाँ पे 2 के ऊपर, इसलिए हमने 2 लिखा, तो आंसर इज 6। सो दैट नंबरिंग इज करेक्ट। ये जो नंबरिंग है ये आपने बिल्कुल करेक्ट की है, और ऊपर वाली नंबरिंग आपकी क्या थी, बोलो रॉन्ग थी। बिकॉज द सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट मस्ट बी मिनिमम। आपके उस एंड से आप नंबरिंग करेंगे जिधर से आपका सम ऑफ लोकेंट जो है वो क्या है, आपके मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसका नाम देख लेते हैं। बोलो प्रिंसिपल चेन में टोटल कार्बन कितने, 4 तो हमने ब्यूट लिखा, डबल बॉन्ड है तो YNE लिखा, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है 2 है तो डाई लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 3 है तो 1,3 लिखा, आगे पीछे हाइफन लगा दिया। उसके बाद डाई वर्ड आ गया YNE से पहले, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके जो ENE YNE एक से ज्यादा हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, डाई ट्राई वर्ड आ जाए, तो जो आपका वर्ड रूट होता है, जैसे यहाँ पे ब्यूट है उसके आगे हमें A लगाना पड़ता है, देखो हमने A लिख दिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आपका CH3 है तो CH3 एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे मिथ कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लिखेंगे, तो मिथाइल हमने लिख दिया। अब मिथाइल की जो पोजीशन है वो 2 है तो हमने 2 लिख दिया, तो कंप्लीट नेम हियर इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइआइन। तो इस टाइप से आप एल्काइंस की जो नेमिंग है वो आईपैक नेमिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्काइंस। एल्काइंस आपके सिमेट्रिकल एल्काइंस भी हो सकते हैं और आपके एसिमेट्रिकल एल्काइंस भी हो सकते हैं। If the substituents or the groups present on both the triply bonded carbon atom are same, then it is called as the symmetrical alkyne. So the alkyne which contain the same group on both the triply bonded carbon atom are called as the symmetrical alkynes. आपने symmetrical alkynes कहते हैं, जैसे यहाँ जो आपके ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है जो मैंने रेड कलर से दिखाया, उन दोनों के ऊपर कौन अटैच है, CH3। राइट साइड में भी आपके CH3 प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे तो बोलो कौन प्रेजेंट आपका, CH3। These same groups are present on both the ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, तो ये आपके सिमेट्रिकल एल्काइंस कहलाते हैं। अनसिमेट्रिकल में क्या होंगे, द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो आपके वो कौन होंगे, एसिमेट्रिकल एल्काइंस। सो द एल्काइंस व्हिच कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स on both the triply bonded carbon atoms are called as the asymmetrical alkynes. आप इसमें देखें जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसमें लेफ्ट साइड में तो कौन है, CH3, और राइट साइड वाले ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखिए वहां पे कौन प्रेजेंट, आपके H। तो ये एसिमेट्रिकल एल्काइन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आपके जो एल्काइंस है फर्दर इंटरनल एल्काइंस भी हो सकते हैं और टर्मिनल एल्काइंस भी। तो इंटरनल कौन होंगे, अभी आप देखें जो ऊपर जो हमने अभी एग्जांपल लिए सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के अंदर, वहीं से देखो आपके क्लियर हो जाता है। जो हमने अभी सिमेट्रिकल एल्काइन का एग्जांपल लिया था उसमें देखें आपकी जो प्रिंसिपल चेन है देखो वो कौन हुई, देखो ये मैंने इसके बाहर, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। इस प्रिंसिपल चेन के कितने एंड होते हैं, प्रिंसिपल चेन के 2 ही एंड होते हैं। देखो ये आपका 1 एंड हो गया और वो आपका सेकेंड एंड हो गया, अदर एंड, 2 ही एंड होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसी भी एंड के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। जो एंड कार्बन एटम है तो उस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड अटैच नहीं है। तो यही डेफिनेशन है, द एल्काइंस इन व्हिच द ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम चेन। जो कार्बन एटम की जो चेन है, जो कार्बन एटम की जो प्रिंसिपल चेन है उसके एक एंड के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, जैसे अभी इस एग्जांपल में आपने देखा, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल एल्काइन। इसके 2 ही एंड है, देखो मैंने फिर लिखा 1 एंड सेकंड एंड,
और आपके जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसी भी एंड से अटैच नहीं है, तो ये आपका हो गया इंटरनल एल्काइन। या आप कह सकते हैं वो एल्काइंस in which no H atom is attached to the triply bonded carbon atom। ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, आप इसमें देखिए क्या इससे कोई H अटैच है? नो, कोई भी H अटैच नहीं है। तो इस टाइप से भी आप इंटरनल एल्काइन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टर्मिनल एल्काइंस के बारे में। तो टर्मिनल एल्काइंस कौन हुए? जैसे एसिमेट्रिकल एल्काइन का जैसे एग्जांपल था, देखो मैंने फिर से लिख दिया। इसमें देखें आपके जो दो एंड है, नीचे देखें वन एंड सेकंड एंड। जो वन एंड हमने लिखा, जो फर्स्ट एंड है आपका, उधर देखिए आप लेफ्ट साइड वाला जो एंड है, उस एंड वाले कार्बन एटम के ऊपर आपके क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इट इज ए टर्मिनल एल्काइन। सो द एल्काइंस इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट one of the end of the carbon atom chain are called as the terminal alkynes। या आप ये कह सकते हैं the alkynes in which H atom, in which बोलो क्या? one H atom, in which बोलो क्या? one H atom is attached to the triply bonded carbon atom। आपका जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या अटैच हो जाए? बोलो H। जैसे अभी आप लेफ्ट वाले को दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है और इसके ऊपर बोलो कौन अटैच है? H। तो अगर H अटैच हो जाए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कह देते हैं टर्मिनल एल्काइन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एल्काइंस के अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल सकती है। तो उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बोलो क्या थी कंडीशन, बताएं आप। उसके लिए कंडीशन ये थी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। तो देखो जब कार्बन कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे एल्केन्स अगर हम ले लें, तो उनके बीच में तो देखो फ्री रोटेशन हो जाती है। तो जब क्या हो जाती है? बोलो सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी? देयर अकर्स द free rotation, and because of that reason the alkanes cannot show the geometrical isomerism। फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं हुई कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो जो एल्केन्स हैं, तो एल्केन के अंदर बोलो क्या होती है? देयर इज द फ्री रोटेशन इन बिटवीन द सी एंड सी एटम। सो द पोजिशन ऑफ द ग्रुप और द एटम जो भी आपके प्रेजेंट है, मान लीजिए H है, Cl है, Br है, ऐसे मैंने उधर भी लिख दिया H, Cl और Br, क्या इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी? नो, देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग। देयर position continuously goes on changing around the carbon carbon single bond। so इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स की ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम। जब पोजीशन ही फिक्स नहीं, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो फॉर्म होती है सिस और ट्रांस, कौन सिस है और कौन ट्रांस है। तो इसलिए एल्केन्स के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं चलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन के अंदर। देखो कार्बन कार्बन के बीच में वन बॉन्ड सिग्मा था, सेकंड बॉन्ड जब पाई आ जाता है तो उससे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ द पोजीशन ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम बिकम फिक्स। देखो अभी फिक्स हो जाती है इस टाइप से। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? अब सेकंड कंडीशन थी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम, एंड दैट रोटेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली बाय क्रिएटिंग द मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड हमने कौन सा क्रिएट किया यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से रोटेशन क्या हो गई? रेस्ट्रिक्ट। सेकंड कंडीशन, सेकंड, ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू ग्रुप्स। देखो एक तो आपका H आ गया और दूसरा बोलो कौन आ गया यहाँ पे? Cl। ऐसे ही एंड these two group must be present on the other डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यही दो ग्रुप आपके दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी होने चाहिए। जैसे वहां पे भी H और Cl हमने लगा दिए। Now see the orientation। Now see the orientation of these two atoms or the group of atom on each of the doubly bonded carbon atom। If the same group are present on the same side of the double bond, जैसे यहाँ पे आपके H और H सेम साइड में है डबल बॉन्ड के, तो ये सिस फॉर्म हो गए। अगर सेम साइड में ना होते तो आप उसे क्या कह देते? ट्रांसफॉर्म। तो कंडीशन आपने क्या सीखी? जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके पास दो ग्रुप का होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एल्काइंस की। एल्काइन में भी क्या हुआ? पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल के बाद देखो डबल बन गया, फिर ट्रिपल भी बन गया, आपकी रोटेशन बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन गेट सेटिस्फाइड कि देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन बिटवीन द C and C atom। नेक्स्ट कंडीशन, there must be the two different groups, there must be the two different group on the multiple bonded carbon atom। जो multiple bonded carbon atom है जैसे एल्काइन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, उसके पास दो ग्रुप होने चाहिए। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की 4 ही हो सकती है, 3 बॉन्ड कार्बन पहले से बना चुका है C और C के बीच में, अब इस कार्बन के ऊपर हम दो ग्रुप नहीं लगा सकते। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक H लगा दें एक Cl लगा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम एक ही ग्रुप लगा सकते हैं, दो ग्रुप लगा नहीं सकते। तो दो ग्रुप नहीं लगा सकते तो इसलिए एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोसेस को शो नहीं कर पाएंगे। तो जो एल्काइंस है कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑन ईच ऑफ द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसलिए उसके ऊपर क्या होगा? ये चीज तो देखो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही आपका
ग्रुप होगा, बोलो क्या होगा, एक ही ग्रुप हो सकता है। अभी आपके सामने एग्जांपल, इसमें आपने क्या देखा, ये इंटरनल एल्काइन का एग्जांपल जो हमने पीछे पढ़ाया था। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इनके ऊपर जो हमने ग्रुप लगाया, देखो एक ही लग सकता है, एक इधर भी CH3 लगा, उधर भी देखो CH3 हमने लगा दिया। तो हम इसमें बता ही नहीं सकते कि सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दो एटम या टू ग्रुप ऑफ एटम्स का होना जरूरी है ऑन ईच ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम, जो एल्काइन में पॉसिबल नहीं है। हेंस द एल्काइन कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन जो आपकी एल्काइन है, ये दूसरी आइसोमेरिज्म जरूर दिखा सकते हैं, लाइक द चेन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो ये शो कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखें, ये इंटरनल एल्काइन है, इसमें आपकी जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन देखें, बोलो क्या है इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन है नंबरिंग की, हमने देखो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में है आपका ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, ये हमने डायग्राम ड्रा किया, इसमें आप देखें यहाँ पे जो पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की, बोलो वो क्या है, 1 2 3 4। तो देखो आपने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4, क्या ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है? तो सबसे पहले तो आप यही बताएं, नो, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया था लोएस्ट सम रूल। अगर हम नंबरिंग देखो इधर से करते, जो हमने करके दिखा रखी है 1 2 3 4, ऐसा करें तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 3 और 4 के बीच में। तो सम ऑफ लोकेंट बोलो क्या आया, पोजीशन ऑफ लोकेंट इज 3। अगर हम नंबरिंग करते हैं, देखो अब दूसरे एंड से, बोलो कैसे करते हैं हम नंबरिंग, देखो इधर से, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। बताओ अब कहाँ पे आया ट्रिपल बॉन्ड, जब हमने नंबरिंग की अब लेफ्ट टू राइट, तो बोलो कहाँ पे आया, वो आ गया 1 और 2 के बीच में, तो मीन्स पोजीशन इज 1। तो ये नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। ऊपर से आप नंबरिंग नहीं कर सकते, जो 1 2 3 हमने लिखा लेफ्ट टू, आप राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाली अब करेक्ट है, क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहले हमने डायग्राम लिखा ड्रा किया था आपके सामने, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 और 3 के बीच में, देखो तो उसका नाम देखो क्या है, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। और इस नेक्स्ट वाले का बोलो नाम क्या हो गया, इसका ब्यूट 1 आइन, इसका नाम ब्यूट 1 आइन है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला आप देखिए क्या है, बोथ हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, दैट इज द C4। बोलो फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूले से भी देखो सीधा याद कर सकते हैं, CnH2n माइनस में 2। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 कार्बन है तो 4 पुट करेंगे तो C4 हो गया, और n की जगह 4 पुट किया, 4 2 जा 8 माइनस 2 6 हो गया, देखो H6 हो गया, तो C4 बोलो क्या आएगा आपका H6। तो ये जनरल फार्मूला होता है आपके एल्काइन का। तो इस टाइप से वहां से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एल्काइंस हैं। तो आपने क्या देखा, ये वो कंपाउंड है जो क्या है, जिनका मोलिकुलर फार्मूला बोलो क्या है, सेम है C4H6, बट दे डिफर इन द पोजिशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, दे डिफर इन द पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके एक में तो ब्यूट 2 आइन है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, ब्यूट 1 आइन है। सो दे आर दी पोजीशन आइसोमर्स। तो एल्काइन ने कौन सी आपकी आइसोमेरिज्म शो की, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकते, लेकिन और आइसोमेरिज्म है लाइक द पोजीशन आइसोमर्स, आपकी चेन आइसोमेरिज्म, वो ये शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट इन द एल्काइंस। क्या हम डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी को एल्काइन में स्टडी कर भी सकते हैं या नहीं? अगर डाइपोल मोमेंट है नेट वैल्यू, तो वो किन में होगा? अभी आपने देखा था एल्काइंस तो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दे में भी द इंटरनल एल्काइन, दे में भी द टर्मिनल। तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में होगा, तो वो अभी हम स्टडी करेंगे। व्हाई द डाइपोल मोमेंट इन सिमेट्रिकल एल्काइंस इज 0 एंड नॉट इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस। अनसिमेट्रिकल एल्काइन में 0 नहीं होता, ऐसा क्यों? देखो आप, जो सिमेट्रिकल जो एल्काइंस होते हैं, जैसे हमने ड्रा किया, ये एल्काइन हमने ले ली बेसिकली, इसका नाम बोलो क्या है, 2 ही कार्बन वाली सिंपल हमने ली, तो ये हो गया इथाइन। बोलो कौन हो गया ये आपके सामने, इथाइन। अब इसमें क्या है, बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, क्योंकि इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। बोलो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है इस इथाइन की, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन इज sp। sp है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन। सो दैट कार्बन जो CH बॉन्ड है, उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, CH बॉन्ड के, ये कार्बन, कार्बन की तरफ CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड दस द कार्बन एक्वायर द स्लाइट, बोलो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, 50% एस करेक्टर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो द कार्बन एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एक्वायर स्लाइट positive charge. Similarly, on the other end, slight positive charge on the carbon atom and slight negative charge on the, slight positive charge on the hydrogen atom and the slight negative charge on the carbon atom. Because the carbon atom here is sp hybridized, it has 50% s character, so it is more electronegative element. So these, that more electronegative carbon atom attract the bond pair electron towards itself, and thus it acquires slightly negative charge. Now what's the direction of the dipole moment? Positive to negative. तो जो एक CH बॉन्ड है उसमें हम डायरेक्शन अगर दिखा दें तो क्या बनेगी, बोलो पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो इस टाइप से पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ऐसे ही दूसरे के ऊपर दिखाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको आप बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। बोलो इसको आप क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड एज द बॉन्ड मूवमेंट। एक बॉन्ड के अंदर जो ये मूवमेंट आई, जो डायरेक्शन आई, इसे आप कहते हैं बॉन्ड मूवमेंट। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो ऐसे ही दूसरे बॉन्ड के अंदर आपने देखा, दूसरे CH बॉन्ड के अंदर उसकी ये बॉन्ड मूवमेंट है। तो बॉन्ड मूवमेंट जो है एक बॉन्ड की, एक CH बॉन्ड की, वो दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है टू द सेम एक्सटेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, इसलिए नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो गई? बोलो इसके अंदर 0 हो जाएगी। ऐसे नीचे वाले में हमने H हटा के सिर्फ क्या लगा दिया? वहां पे CH3। लेकिन जो CH3 वाला जो कार्बन है वो क्या है? वो तो आपका ये तो देखो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम तो sp हाइब्रिडाइज है, 50% s कैरेक्टर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए जो दूसरा कार्बन है, देखो दूसरा कार्बन CH3 वाला कार्बन वो क्या है? अगर हम उस कार्बन की बात करें तो वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके अंदर 25% ही एस कैरेक्टर है, इसलिए वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों कार्बन के अंदर, एक तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम जो कि एक किससे अटैच है? आपके CH3 ग्रुप से, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, वो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? उसी टाइप से ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसके अंदर 50% एस कैरेक्टर है। तो इसलिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है ट्रिपली बॉन्डेड, उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इटसेल्फ। जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो इसलिए CH3 वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। इसी टाइप से दूसरी साइड में भी होगा। और डाइपोल मोमेंट की बोलो डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो जैसे पहले हम ऊपर वाले डायग्राम में शो कर रहे हैं आपके सामने, बोलो की डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसको हम बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। ऐसे आप नीचे वाले एग्जांपल में देखें, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरे एंड पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। तो मींस क्या हुआ इन सिमेट्रिकल एल्काइंस में? द बॉन्ड मूवमेंट, क्योंकि इसको हम बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं, एक बॉन्ड की मूवमेंट को बॉन्ड मूवमेंट, दूसरे बॉन्ड की मूवमेंट को बॉन्ड मूवमेंट। सो द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ वन बॉन्ड कंप्लीटली कैंसिल द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ द अदर बॉन्ड, because molecule is symmetrical है। molecule बोलो कैसा है? symmetrical है। hence the net value of dipole moment in the symmetrical alkyne is 0। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि हमें बॉन्ड मूवमेंट वर्ड यूज करना है यहाँ पे, और जो इनका रिजल्टेंट रहा उसी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन के अंदर। तो जो अनसिमेट्रिकल जो एल्काइन होते हैं उसमें देखो हमने क्या किया, आपके जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है उन दोनों के ऊपर जो ग्रुप है वो सेम प्रेजेंट नहीं है। एक एंड के ऊपर CH3 है, दूसरे एंड के ऊपर जैसे हमने H लगा दिया यहाँ पे। तो उससे देखो हुआ क्या? उससे ये हुआ कि जो अब हम देखते हैं, देखो sp हाइब्रिडाइज्ड ही है आपका ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये सिमेट्रिकल नहीं रहा। तो 50% देखो एस करेक्टर ही है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम का, लेकिन इससे अटैच कौन है? इससे अटैच है H। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो H है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऑन द अदर एंड द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, and thus the CH3 group carbon atom acquire the slight positive charge and the triply bonded carbon atom acquire the slight negative charge। but जो मैग्नीट्यूड होगा बॉन्ड मूवमेंट का, देखो ये जो CH बॉन्ड वाला देखो जो बॉन्ड मूवमेंट है इसका, देखो जो मैग्नीट्यूड, मान लीजिए मैंने छोटी लाइन में लगा दूं, इधर से देखो मान लीजिए मैं बड़ी लाइन लगा दूं, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि बॉन्ड मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। जो इन्वायरमेंट है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम का वो सेम नहीं है। एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से H अटैच है, तो दूसरी जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम उससे CH3 अटैच है। इसलिए जो यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट बनेगी, बोलो क्या बनेगी? उसी टाइप से बॉन्ड मूवमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बॉन्ड होते हैं इनके अंदर जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप इसको डाइपोल मूवमेंट नहीं कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए, और जो पार्टिकुलर बॉन्ड होते हैं उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट। बोलो क्या वर्ड यूज करते हैं आप यहाँ पे? बॉन्ड मूवमेंट। तो जो बॉन्ड मूवमेंट है एक बॉन्ड की, क्या वो दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट को कंप्लीटली कैंसिल कर पाएगी? नहीं करेगी कैंसिल, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल नहीं है। तो देखो अब हम डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे मैंने लगाया इसको दोबारा से देखो, मैं दिखाता हूँ डायरेक्शन, अब ध्यान से देखते चले जाना। देखो CH बॉन्ड की डायरेक्शन दिखाई, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही जो CC बॉन्ड है दूसरा CH3C बॉन्ड, उसकी डायरेक्शन दिखाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। मींस इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन बॉन्ड डू नॉट कंप्लीटली कैंसिल्स द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द अदर बॉन्ड। तो जिससे क्या होगा,
जो अनसिमेट्रिकल एल्काइंस है दे हैव द नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी। तो बोलो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट किस में होती है? अनसिमेट्रिकल एल्काइंस के अंदर, एसिमेट्रिकल एल्काइंस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड मोमेंट है एक बॉन्ड की, वो दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट को कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर पाती, इसलिए उसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट रह जाती है। तो इस टाइप से आप पर्टिकुलरली एग्जाम में लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर हम देखें एल्काइन, एल्कीन और एल्केन्स के बीच कंपेयर करके किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और किसका ज्यादा, तो आप क्या करेंगे? जो ट्रिपली बॉन्ड है उसके बारे में तो देखो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पाई बॉन्ड आ गए, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और दो क्या होते हैं बोलो इसमें, देयर आर द टू पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड इजीली डिस्पर्सेबल होते हैं, इजी मूवेबल होते हैं, वो इधर से उधर आपके खिसक सकते हैं। इट मींस दे आर मोर पोलराइज्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इट इज मोर पोलराइज्ड एज कंपेयर टू द डबल और द सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द हाई मोबिलिटी ऑफ द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देन द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो क्योंकि एल्केन के अंदर सिर्फ क्या होता है, एल्केन के अंदर सिर्फ होता है सिग्मा बॉन्ड। इसके अंदर ये हमने बताया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई बोलो, मोबिलिटी बन जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मोलिक्यूल ये आपका अनसिमेट्रिकल होता, देखो थोड़ा डिस्पर्सल हो गया, पोलराइजेशन होगी, देखो जो हमने दिखाया है स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये कैसे आया? ड्यू टू द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, और इनकी पोलराइजेशन नेचर की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड ही हमने लिया, इसके अंदर ये सेपरेशन ऑफ चार्ज जैसे मैंने आपको दिखा दिया था। अब क्या होगा, यहाँ पे तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, दो मॉलिक्यूल्स हमने दिखाए, तो इसलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एल्काइन और एल्काइन मॉलिक्यूल के बीच वो ज्यादा होगी। एल्कीन में क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है एल्कीन में, तो यहाँ पे कम से कम एक पाई बॉन्ड तो है, तो क्या होगा, इसके अंदर भी वही होगा कि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े पोलराइजेबल होते हैं, इसलिए इनके अंदर भी स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ये स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज का, ये जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किस में ज्यादा होगी, एल्काइंस में, क्योंकि एल्काइन के अंदर टू पाई बॉन्ड्स थे, इसलिए वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, और एल्कीन के अंदर पोलराइजेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इसीलिए क्या होगा, एल्केन में देखें तो देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके पोलराइजेबल नहीं होते ज्यादा, और मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल, हर जगह एच ही लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। देखो आएगा तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम। तो हमने देखो यहाँ पे भी स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं इनके मैग्नीट्यूड का। तो इट मींस जो ये मैग्नीट्यूड आया है स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज का, ये सबसे ज्यादा वैल्यू किस में होगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी जिसमें ज्यादा पोलराइजेबल बॉन्ड था, जिसमें ज्यादा मूवेबल इलेक्ट्रॉन थे, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो एक एंड के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो कौन, एल्काइंस हैं। तो उससे कम पोलराइजेशन किस में हुई, एल्कीन में, और सबसे कम एल्केन के अंदर हुई। ये फार्मूला आप जानते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार, Kf इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मींस Q1 Q2 क्या है, ये जो हमने लिखा है स्लाइड पॉजिटिव, मान लीजिए ये Q1 है, और जो हमने लिखा स्लाइड नेगेटिव ये वैल्यू मान लीजिए Q2 की है। सो द मोर द वैल्यू ऑफ Q1 Q2, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 का, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, F मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जो आपके इथाइन मॉलिक्यूल है इसमें आपके Q1 Q2 की वैल्यू स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज दे आर मोर पोलराइजेबल, जिसकी वजह से एल्काइन और एल्काइन मॉलिक्यूल के बीच में देखो मैंने ब्लू कलर से जो अट्रैक्शन दिखाई, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये इंड्यूस्ड डाइपोल जो अट्रैक्शन है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ये। लेकिन ये डाइपोल आपका जो बना है ये पोलराइजेबल है, बोलो कैसा बना है, आपके पोलराइज्ड हुआ है, एक एल्काइन के दूसरे एल्काइन के पास आने के बाद बना है। तो इन एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड तो हमने बोल दिया, लेकिन वास्तविकता में एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से ये बन जाता है। और तो एल्कीन में देखेंगे तो क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन है उससे वीकर होगी एल्काइन से, लिखा हमने स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है, तो ऊपर वाले में मैं लिख देता हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाए, वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। नीचे वाले एल्कीन में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, अगर एल्केन में दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो अट्रैक्शन किसके मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है, एल्काइन एल्काइन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और एल्केन एल्केन के बीच में सबसे कम।
तो मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा था ना कि ये जो हमने लिखने को लिख दिया डाइपोल, एक्चुअल में ये इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तभी ये डाइपोल क्रिएट होते हैं, और उसको क्रिएट होने को कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। जो किसी एक मॉलिक्यूल के दूसरे के नजदीक आने की वजह से हो तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके बीच में ज्यादा होगा, विल बी मोर इन बिटवीन द एल्काइन मॉलिक्यूल्स देन इन बिटवीन द एल्कीन एंड द एल्केन मॉलिक्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट की। तो क्या होगा, अब किस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? देखो, हमें इन पार्टिकल को दूर करना है, तभी तो मेल्ट हो पाएंगे, तभी तो मेल्ट होंगे, मींस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो पाएंगे, दूर हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, या बॉयल कर रहे हैं तो इन पार्टिकल को दूर करना पड़ेगा, मींस पार्टिकल को दूर करना होता है हीटिंग के द्वारा। तो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ी पार्टिकल्स को दूर करने के लिए? आपके एल्काइन के अंदर। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग induced dipole attraction in between the alkyne molecules than in between the alkene molecules and the alkane molecules। तो इसलिए जो ऑर्डर होगा आपके मेल्टिंग पॉइंट का वो क्या होगा, एल्काइन ग्रेटर देन एल्कीन ग्रेटर देन एल्केन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, एरीन्स, इन सब में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, वो तो सेकंड इश्यू है। लेकिन पहले पॉइंट यही आ जाता है कि जो एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, एरीन्स हैं, दे आर रिएक्टिव, जबकि एल्केन्स क्या होते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कीन, एल्काइंस, जो एल्कीन है आपकी, एल्काइंस है, एरीन्स है, इन सभी के अंदर में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर रिएक्टिव साइट होती है, सो दे आर रिएक्टिव इन नेचर, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, रिएक्टिव इन साइट नेचर। एल्कीन्स में देखो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया, पाई बॉन्ड होता है इसके अंदर। एल्काइन में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन में देखें तो डबल बॉन्ड आ गए। तो मीन्स रिएक्टिव साइट होती है सभी के अंदर, चाहे वो आपकी एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे वो बेंजीन हो, जबकि एल्केन में ऐसा नहीं होता, इसलिए एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एल्काइंस होती हैं ये एसिडिक होती हैं, जबकि एल्कीन्स और एल्केन्स एसिडिक नहीं होते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एल्काइंस ही एसिडिक क्यों होती है। आप पहले से जानते हैं एसिडिक नेचर कहते किसे हैं, तो अरेनियस जो साइंटिस्ट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे एल्केन हम ड्रा कर देते हैं, इसके अंदर जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन बोलो कैसे हैं, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एल्कीन में देखें तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो क्या है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की हेल्प से। तो ये जो कार्बन है इसमें देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड ये इधर, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई है, और एक कार्बन से जो H अटैच है वो भी सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन से। डबली बॉन्ड कार्बन एटम के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। 3 का मतलब 1s 2p हो गए ना 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम ऐसे एल्काइन में देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम उसने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और बचे हुए 2 क्या है, ये पाई बॉन्ड है आपके। तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, प्लस लोन पेयर कोई है नहीं, तो 2 + 0 = 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड है ये 50% s कैरेक्टर होता है इसके अंदर। तो आपने क्या देखा, जो एल्काइंस होते हैं उनमें क्या है, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड in between the C and C atom, so the carbon atom is sp hybridized, while in alkene and alkynes there is a double and the single bond, so the hybridization in alkenes is sp2 and alkanes sp3। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे जो परसेंटेज एस करेक्टर एल्केन्स वाले कार्बन का क्या है 25%, एल्कीन में क्या है 33%, और एल्काइन में क्या है 50%। तो इसीलिए अगर इसी बात को हम ध्यान रखें तो जो एस करेक्टर है वो मैक्सिमम किस में हुआ, द परसेंटेज एस करेक्टर इज मैक्सिमम इन एल्काइंस, दैट इज 50%, देन इन एल्कीन्स वेयर एस करेक्टर इज 33% and least s character is in alkanes, that is 25%। so which कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया बोलो कौन हो गया, वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो मैंने लिख दिया वहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपके लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, एल्केन वाला हो गया। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा था, उसने यही तो कहा था ना कि आपके एसिड कौन होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एसिड का है जिसमें आपका H एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आउट ऑफ दीज एल्केन, एल्केन एंड एल्काइन, किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, जिससे H अटैच है, वो आपका एल्काइन है। तो एल्काइन वाला 50% एस करेक्टर वाला जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो CH बॉन्ड के बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम एल्काइंस में वो क्या है, इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द W और द सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इन एल्कीन एंड द एल्काइंस। इसलिए जो H एटम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम क्या करेगा, वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम वो CH बॉन्ड के बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, एंड इट कैन लूज द H एटम इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन।
तो इसलिए यहाँ पे जो हमने दिखाया, ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके ऊपर देखो जो ये H अटैच है, ये क्या करेगा, देखो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बोलो ये क्या करेगा, देखो इस टाइप से अपनी तरफ बोलो क्या कर लेगा, इसे अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करने से क्या लॉस हो जाएगा, देखो यहाँ से ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी और ये H निकल जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एल्कीन और एल्केन के अंदर, क्योंकि वहां पे जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो सिर्फ कौन सा कार्बन ही H पॉजिटिव लॉस कर पाया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है वो सिर्फ किसमें है, एल्काइन में। किसमें है बोलो, एल्काइन के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि व्हाई द एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर बट एल्कीन्स एंड एल्केन्स आर नॉट एसिडिक इन नेचर। अब हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है कि एल्काइंस तो दो टाइप की होती हैं, वो टर्मिनल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा एसिडिक, या कौन होगा कौन नहीं होगा। तो जो ये पाया गया कि जो टर्मिनल एल्काइंस है वही एसिडिक होते हैं, इंटरनल नहीं, जबकि हैं तो दोनों ही एल्काइन। तो ऐसा क्यों, देखो टर्मिनल एल्काइन, इसके अंदर भी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके अंदर भी आपके जो कार्बन उसके हाइब्रिडाइजेशन sp है, 50% s कैरेक्टर है इसके अंदर, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही इंटरनल एल्काइन को ले ले तो उसके अंदर भी आपका जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s कैरेक्टर है, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन आउट ऑफ दीज टू, टर्मिनल एल्काइन और द इंटरनल एल्काइन, वो कौन सा आपकी एल्काइन है जिसके अंदर H प्रेजेंट है। सो इन द टर्मिनल एल्काइन द H एटम इज प्रेजेंट ऑन द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हाइल देयर इज नो H, while there is no H atom on the triply bonded carbon atom in the internal alkyne। जो इंटरनल एल्काइन है उसके अंदर देखो जो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, क्या इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर आपको कोई H दिख रहा है, नो, वहां पे कौन है, देखो CH3 H तो है ही नहीं। तो एसिड कौन होता है, जो H पॉजिटिव आयन लॉस करे, जबकि आपका जो ये टर्मिनल एल्काइन है इसमें जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम कार्बन से बोलो कौन अटैच है, H, इसलिए क्या करेगा, ये CH बॉन्ड के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, इसलिए इसके अंदर से बोलो क्या लॉस हो सकता है यहाँ से, H atom in the form of H positive ion। Hence, the H atom present on the triply bonded carbon atom of the terminal alkyne can be lost in the form of the H positive ion। Hence, the terminal alkynes are acidic in nature and the internal alkynes are not acidic in nature। तो ये एसिडिटी के दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला तो ये कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस तीनों में से एसिडिक है कौन, तो हमने देखा एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर due to the due to the 50% s character in the triply bonded carbon atom, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद एल्काइन तो दो टाइप के थे, टर्मिनल और इंटरनल। तो इसमें से कौन हुआ एसिडिक, आपके सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस, क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो वन एंड ऑफ द कार्बन एटम चेन पे होता है, और जब वन एंड के ऊपर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके ऊपर H जरूर होगा। क्या जरूर होगा बोलो, H जरूर होगा। कितनी ही लंबी चेन आप ड्रा कर दें, देखो मैं आपके सामने देखो ड्रा करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5, ऐसे करके किसी एक एंड के ऊपर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। वैलेंसी तो बची हुई कौन पूरी करता है, देखो इस एंड के ऊपर लगा दो, चाहे H से पूरे होंगे, तो इस कार्बन के बोलो क्या हो गया, 1 2 3 ही बॉन्ड है, अभी एक कमी बाकी, एक है वैलेंसी बाकी, तो इसलिए H लगाना पड़ा, इसलिए H लगाना पड़ा टर्मिनल एल्काइन में। जबकि इंटरनल एल्काइन में देखो कितनी ही लंबी चौड़ी आप चेन ले ले, अगर आप बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम की चेन के मिड में हम कहीं पे लगा दें तो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम उसकी वैलेंसी अपने आप ही पूरी हो जाती है। देखो पूरे 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के हो गए ना पूरे 4 बॉन्ड, इसके भी देखो पूरे 4 बॉन्ड, हमें कोई H लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मींस जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उसके अंदर तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर बोलो क्या अटैच रह जाता है, H जरूर होता है। जबकि इंटरनल एल्काइंस वाले कार्बन एटम की वैलेंसी अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है, तो वहां पे कोई H होता ही नहीं, इसलिए वो H पॉजिटिव लॉस कर ही नहीं पाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी। इसलिए इंटरनल एल्काइन एसिडिक नहीं होती, और टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी आपके कंपाउंड है जिनमें आपके मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देता है, जैसे एल्कीन, एल्काइंस, डाइईन्स, साइक्लोएल्कीन्स, दे ऑल कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, देखो एल्कीन में डबल बॉन्ड आ गया, इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो जो हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स, इन बिटवीन द टू सेम एटम, इन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है उस पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको पहले भी बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ HCl, कोई स्पीसी है तो H पॉजिटिव होगा, Cl बोलो क्या होगा, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है उसे क्या कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी होती है उस पार्ट को क्या कहते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो अब जो आपकी एल्कीन है, जो भी हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, वहां पे कौन सा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कौन सी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के ऊपर कौन करेगा अटैक, ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो करेगा अटैक।
एल्काइंस में भी बोलो क्या है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कौन करेगा अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा अटैक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइईन्स, इसके अंदर भी दो दो डबल बॉन्ड है, तो कौन करेगा अटैक, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कौन करेगा अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा अटैक। साइक्लोएल्कीन्स में देखिए वहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच आपके डबल बॉन्ड है, तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बिटवीन द सी एंड सी एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, सो वो विल अटैक, द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो ये सभी के अंदर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इन सभी के अंदर। तो इन एल्कीन, एल्काइन, डाइन्स, साइक्लोएल्कीन्स ऑल हैव द लोकलाइज्ड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द डाइन्स। वहां के अंदर जो हमने ये वर्ड लिखा लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड नहीं है, इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो लोग क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है। लेकिन वन एंड एक्वायर्स द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, अदर एंड एक्वायर्स द कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है बेंजीन की तरह से। जैसे अगर हम यही चीज किस में ड्रा करते बोलो, बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन में क्या होता, बेंजीन के अंदर भी देखो डबल सिंगल डबल होता है, इसके अंदर भी देखो इस टाइप से ये रेजोनेंस प्रोसेस चलती है। लेकिन इसकी वजह से बेंजीन के अंदर क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन होती है, बेंजीन में क्या होती है, साइक्लिक कंजुगेशन, डबल बॉन्ड की सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई लेकिन कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ। इसलिए इसीलिए देखो जो बेंजीन के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ, तो ये आपके डिफर करती है बेंजीन को डाइईन से, क्योंकि डाइईन के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं और बेंजीन के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होती है। डाइईन्स के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, देखो एक एंड के ऊपर पॉजिटिव दूसरे एंड पे नेगेटिव आ गया, बेंजीन में सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। तो हमने क्या देखा, एल्कीन हुई, एल्काइन हुई, डाइईन्स हुए, साइक्लोएल्कीन्स हुई, इन सभी के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसलिए इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो ऑल विल शो, देखो इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करते हुए दिखाएंगे। पहले एल्कीन्स में देखो मूवमेंट जरूर दिखाएं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ से स्टार्ट हुआ एरो और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एंड होना चाहिए आपका एरो, तो ये डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। इसी टाइप से एल्काइन में देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड कर दी गई किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। ऐसे ही डाइईन्स के अंदर, ऐसे ही साइक्लोएल्कीन्स के अंदर द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट डोनेटेड टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ऑल कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाई दे शो द एडिशन रिएक्शन। फर्दर देयर इज अ डबल और द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द सी एंड सी एटम, इन सभी के अंदर सी और सी एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सो ऑल कैन शो द एडिशन रिएक्शन। तो ये बेंजीन है, जैसे हमने नीचे स्ट्रक्चर बनाई थी, बेंजीन के अंदर भी तो आपके डबल बॉन्ड है, तो वो एडिशन क्यों नहीं दिखाते, जैसे हमने पढ़ा है पहले, तो जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। बोलो क्या, ये जो साइक्लिक कंजुगेशन है ये इस कंपाउंड को आपके हक्कल रूल के अनुसार बेंजीन रिंग को एरोमेटिक बना देती है। एक एरोमेटिक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, साइक्लिक कंजुगेशन है इसमें। लेकिन डाइईन के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं थी। साइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड का होना, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाना, वो आपकी डाइईन्स के अंदर नहीं थी। तो नहीं थी आपके डाइईन्स के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन, इसलिए तो ये एडिशन रिएक्शन दिखा पाया। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने के बावजूद, डाइईन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, उसके बावजूद भी ये एडिशन रिएक्शन दिखा पाया क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हुई और इसके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया और one end acquires complete positive charge, other end acquires the negative charge. Due to that reason, the dienes also shows the addition reaction. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब इनके बीच में ऑर्डर देखना है, एल्कीन, एल्काइंस और डाइन्स के बीच में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में फास्ट चलेगी। तो सबसे पहले हम एल्कीन्स देखते हैं। एल्कीन के अंदर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33% s करेक्टिव है और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट कर पा रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें, ये डोनेशन के बाद क्या हुआ, डोनेशन करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बना, ये जो कार्बोकेटाइन नंबर 1 बना, इसमें आप देखें क्या है, कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकेटाइन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। अगर हम इसी टाइप से देखें किसके अंदर, और ये कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बना है ये कैसा है, जैसे ऊपर बता दिया गया था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp2। नेक्स्ट में हम देखें एल्काइन में, तो उसमें क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बोलो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो ये 2 पाई जो इलेक्ट्रॉन है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, टाइटली हेल्ड किए रखता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बोलो क्या है, दे आर टाइटली हेल्ड, दे आर टाइटली हेल्ड बाय more electronegative, by more electronegative
50% s करेक्टर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। जो ट्रिपली बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड किए रखता है, इसलिए जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करता है लेकिन टू ए स्मॉल एक्सटेंट, टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो वो लोग कौन से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली डोनेट किए गए, आपके एल्कीन्स वाले पाई इलेक्ट्रॉन या एल्काइंस वाले। दिखने में तो ये दिखता है कि जो एल्काइन है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि एल्कीन में तो एक ही पाई बॉन्ड था और जबकि एल्काइन के अंदर दो दो पाई बॉन्ड है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इसलिए उसको ज्यादा डोनेट करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसका जो एस करेक्टर है वो क्या है, 50% एस करेक्टर, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं लेकिन उनको टाइटली हेल्ड किए रखता है, इसलिए वो उनको कम डोनेट कर पाता है टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए कम किए डोनेट इलेक्ट्रोफाइल को, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन है वो भी आपकी स्लो चलेगी। दूसरी बात, चलो डोनेट कर दिए चाहे कम किए, उसके बाद जो कार्बोकेटाइन आया तो उसी टाइप से देखो वही अगर हम इस फॉर्म में भी बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। जो कार्बोकेटाइन नंबर 2 बना यहाँ पे कार्बन कार्बोकेटाइन जो बना इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बोलो क्या है, sp, मीन्स वही बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कार्बोकेटाइन बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कार्बन एटम है ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोलो कार्बन एटम, क्योंकि इसके अंदर बोलो क्या है, बिकॉज इट हैज ओनली 33% एस करेक्टर। जबकि आपका जो कार्बोकेटाइन नंबर 2 है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसमें बोलो क्या आ गया है, 50% s करेक्टर है, तो मोर द s करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बोकेटाइन 1 के अंदर जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा। तो पहले वाला जो केस है एल्कीन, इसलिए उसमें रिएक्शन आराम से चलेगा। तो दोनों बातें हो गई, देखो कार्बोकेटाइन के बेसिस पे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया और जो सिंपल तरीका था उसके बेसिस पे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एल्कीन के अंदर इजीली डोनेट किया जाता है, एल्काइन के अंदर नहीं किया जाता है। एल्काइन में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली हेल्ड किए रखते हैं। सो दीज पाई इलेक्ट्रॉन cloud is not easily donated towards the incoming electrophile। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइन्स के अंदर। डाइन्स के अंदर भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को देखो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए और उसके बाद ये कार्बोकेटाइन भी बन गया, कार्बोकेटाइन नंबर 3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बोलो क्या है, उसी टाइप से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो आपने क्या देखा, जैसे कार्बोकेटाइन नंबर 1 भी sp2 था, ये भी sp2 है, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन नंबर 3 है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट गेट फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय द रेजोनेंस प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी जिससे पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हो गया फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, डिस्पर्सल बाय द रेजोनेंस प्रोसेस। तो इसलिए कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इन तीनों के अंदर अगर हम देखें आउट ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड द डाइन्स, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बना, तो वही रिएक्शन तो होगी फास्ट। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना वो है कार्बोकेटाइन नंबर 3, क्योंकि उसके अंदर वो कार्बोकेटाइन आपके रेजोनेंस के द्वारा फर्दर स्टेबलाइज हो गया है। So after donating the pi electron density to the incoming electrophile, the carbocation 3 is stabilized to the large extent due to the dispersal of positive charge by the resonance process, which is not occur in case of carbocation number 1 and the 2। तो इसलिए ये तो आपने देख ही लिया, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन चलेगी आपकी वो किसके अंदर चलेगी, आपके डाइन्स के अंदर चलेगी। अब कंपैरिजन करना रह गया कार्बोकेटाइन 1 और 2 के बीच में, वो हमने पहले भी आपको बता ही दिया था कि जो कार्बोकेटाइन 1 है इट इज क्या होगा, बोलो इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल है, कार्बोकेटाइन 1 इज मोर, यहाँ पे हम स्टेबल लिख देते हैं, इट इज मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन नंबर 2। किस वजह से, वो हमने बता ही दिया था, बिकॉज इन कार्बोकेटाइन नंबर 1 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, व्हाइल इन केस ऑफ द कार्बोकेटाइन नंबर 2 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।
तो इसलिए जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अमंग द डाइईन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस वो क्या हो जाएगा? Dienes are most reactive towards the electrophilic addition reaction than the alkenes and the alkynes. So thank you. That all about the alkynes nomenclature, alkynes physical properties. तो ये हमने आज डिटेल में देखा हमारे इस पार्ट के अंदर कि alkynes क्या है, उनकी आइपैक नेमिंग के बारे में हमने सीखा। फिर उसके अंदर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म चल सकती है, आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो चल नहीं सकती एल्काइन में, वो हमने देखा। फिर हमने डिफरेंट आपके मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट के क्वेश्चन देखे, तो लास्ट में देखा एल्काइंस के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो कंपेरिजन किया हमने एल्काइंस का कि उसमें ज्यादा होगी या आपके सिंपल एल्कीन या डाइईन्स के अंदर ज्यादा होगी। सो दैट ऑल अबाउट द एल्काइंस दैट पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू।